गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा एफेक्टेशन क्या है। एफेक्टेशन इज द एक्स्ट्रा एफर्ट दैट इज टेकन बाय द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू टू पोर्ट्रे समथिंग डिफरेंट with his the words that he uses, the tone in which he speaks, the pitch of the voice, the body language, the change in the body language, or the extra effort put into consciously to portray something different from what he feels or what he is, and to hide something from the physician. So last time we saw सिलिशिया एंड लाइकोपोडियम. आज दो और क्लोज रेमेडीज देखेंगे. इग्निशिया एंड नाइट्रोमूर, टू लीडिंग ग्रीफ रेमेडीज, टू क्लोजेस्ट ग्रीफ रेमेडीज फ्रॉम आवर ट्रेडिशनल मट रेमेडी का. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी नाइट्रोमूर. नाइट्रोमूर जो है, द रेड लाइन रूब्रिक ऑफ नाइट्रोमूर, द रूब्रिक दैट रन्स थ्रू एंड थ्रू द रेमेडी is dignity or being dignified. Being dignified and to be seen as dignified and to maintain their dignity in every possible situation is the life goal or mission of नाइट्रोमूर. और ये डिग्निटी ही एक तरह का एफेक्टेशन है, टू हाइड व्हाट दे आर फीलिंग इनसाइड, ऑल द रेचेडनेस, द फीलिंग दैट दे आर जस्ट कॉमन सॉल्ट. What is नाइट्रोमूर? नाइट्रोमूर is common salt, and what they perceive about themselves is they are too exclusive. This makes them feel wretched inside, and this wretchedness they want to hide with their dignified front, with their dignified appearance, with their dignified approach to people, right? One way in which you can see this affectation is when you point out, जब आप उनके दुखते रख पे हाथ रख देते हो, जब आप उनके किसी सेंसिटिव पॉइंट पे हाथ रख देते हो, थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाते हो, और पहला साइन क्या आता है, वो आपसे नजरें चुरा लेते हैं. दिस इज इवेडिंग द लुक व्हेन स्पोकन टू. आप अगर पूछोगे कि वो ब्रेकअप ने आपको बहुत इफेक्ट किया नहीं क्या, तो वो हाँ इफेक्ट तो किया सर, नहीं बोल सकते, बट अभी तो 5-6 महीने हो चुके हैं ये बात को, और वो पुरानी बात है. अभी तभी थोड़ा लगा था, लेकिन टाइम मूव्स ऑन, वी ऑल मूव ऑन, है ना सर? सो वो ऑकवर्डनेस में भी एक कंपोजर मेंटेन करता है नाइट्रोमूर, बिकॉज ऑफ देयर डिग्निफाइड, बिकॉज डिग्निटी मीन्स सो मच टू देम. केवाई सर का एक बहुत फेवरेट लाइन है अबाउट नाइट्रोमूर, रिटन बाय डॉक्टर कैथरीन खुल्टर. इट सेज नाइट्रोमूर कल्टिवेट्स ग्रीफ. कल्टिवेट्स का मतलब क्या है? प्रिपेयरिंग द सॉइल, सीडिंग, वाटरिंग, जो भी खत पानी जो भी करना है वो सब करके you grow that grief, you cultivate that grief and reap rewards of fruits. What fruits you will get? थोड़ा सा ग्रीफ डालोगे, आपको मल्टीपल ग्रीफ मिलेगा, ग्रीफ मल्टीप्लाइड मिलेगा. And नाइट्रोमूर cultivates grief, lives in that, dwells on past disagreeable occurrences, broods, and enjoys it also, masochistic. सो ऐसी रेमेडी डिग्निफाइड, अपने आप को डिग्निफाइड दिखाकर दुनिया को ये बताना चाहती है कि आई एम नॉट अफेक्टेड, दैट आई एम नॉट सैड, दैट मेरा दर्जा नीचे नहीं आया है इन चीजों की वजह से. एंड दैट नाइट्रोमूर tries to hide with this dignified front, and this whole dignified front, I would say, is an affectation for naitramur. And when the affectation breaks, that's when you see them trying to avoid the gaze of the physician, because they don't want to be pitied. They don't want the physician to mirror the wretchedness of naitramur. Delusion, wretched she looks while looking in a mirror. The physician's eyes, the IPR's eyes, their friend's eyes, they are the mirror. Now let's talk about ignitia. Like dignity or dignified is the red line rubric, the rubric that runs throughout naitramur. There is one rubric or one theme that runs throughout ignitia, and that is sensitivity to moral impressions. Sensitivity to moral impressions. They are very sensitive to the right and wrong, injustice. Everything is black and white for
इग्निशिया ग्रे एरिया नहीं होता. So whenever you probe into what is bothering them, it is easier to crack a Natramur than an Ignitia in your clinic when you want information about the IPR. IPR के बारे में जब आपको जानकारी चाहिए कि क्या खराब है आपके IPR में, क्या बुरा चल रहा है जिसकी वजह से आप अफेक्टेड हो, अगर आप इग्निशिया को पूछे तो जरा मुश्किल जाएगा आपको उनको प्रोब करना और उनसे इंफॉर्मेशन निकालना, स्पेशली इन द फर्स्ट विजिट, फर्स्ट 2-3 विजिट्स. और यू हैव टू बी दैट सेंसिटिव टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम इग्निशिया. इग्निशिया अगर आप क्लिनिक में देखेंगे, अगर आप उनको प्रोब करते हैं कि क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम चल रहा है, नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, लेकिन ये कुछ नहीं बोलते बोलते उनकी नजरें झुकती जाती है नीचे की तरफ, लाइक दे आर सर्चिंग समथिंग ऑन द फ्लोर. ये एक्शन आपने कब देखा है ज्यादा? आप जब छोटे बच्चों को पूछते हैं ना, चॉकलेट खाई तुमने? जब उनको छुपाना होता है और जब उनको झूठ बोलना भी है, लेकिन वो एक इनोसेंस है, वो चाइल्डिशनेस है अंदर जो आपको झूठ बोलने नहीं देता, आपकी नजर झुक जाती है वो गिल्ट में. यही चीज इग्निशिया के साथ होती है, क्योंकि सेंसिटिव टू मॉरल इंप्रेशंस एंड एंजाइटी कंसाइंस ऑफ इस रेमेडी का बड़ा स्ट्रांग है. तो जब डॉक्टर उनसे सवाल पूछ रहा है और उनको झूठ बोलना पड़ रहा है तो ऑटोमेटिकली नजर झुक जाती है. नहीं डॉक्टर कुछ सब सही है, एकदम अच्छा. एक नजर जाएगी हस्बैंड की तरफ, हु इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इविल, लेकिन फिर नजर झुक जाएगी. सही, सब सही, नथिंग नथिंग, ऑल गुड. आइसिंग ऑन द केक, ये जो लंबा सांस छोड़ना है ना, ये साइन, ये भी एक PQRS सिम्टम है इग्निशिया का, जो हमने अपने स्टॉलवर्ड से सीखा है. ये साइन कहां से आता है? ग्रीफ से आता है, ये सैडनेस से आता है, जो वो छुपाती है ताकि बाहर समाज को पता ना चले कि ये घर में क्या चल रहा है. एंड दैट इज अगेंस्ट द मॉरल्स ऑफ इग्निशिया फॉर हर टू स्पीक इल अबाउट हर फैमिली, चाहे वो डॉक्टर से ही क्यों ना हो. सो इग्निशिया सर्चेस द फ्लोर, फील्स दैट शी इज डूइंग रॉन्ग, कि मैं डॉक्टर के सामने झूठ बोल रही हूँ. बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए. और एक तो पेशेंट ऐसी थी कि रो रही थी, 34-35 ईयर ओल्ड लेडी थी. सब अच्छा है, कुछ नहीं. पूछा रो क्यों रहे हो? मुझे नहीं पता. सब अच्छा, हंस भी रही है, रो भी रही है, एक साथ क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा था. और आई वॉज द लीस्ट सेंसिटिव एट दैट टाइम इन केस टेकिंग, एंड आई वाज बैटलिंग हर, बोलो क्या हुआ, बोलो क्या हुआ. जितना भी पूछ रहा हूँ बस हंसे और रोए एक साथ जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा. और बाद में पता चला उनकी बहन से कि इनके मम्मी पापा, शी वॉजंट मैरिड, इनके मम्मी पापा के साथ ही रहते थे, तो मम्मी पापा के आपस में बहुत झगड़े होते थे, इसलिए परेशान रहती थी. तो शी डिड नॉट टेल. आधा घंटा केस चला, आधा घंटा वो हंसते हुए रोई और रोते हुए हंसी, लेकिन कुछ पता नहीं चला कि वो क्या बोल रही थी, क्यों रो रही थी. सो फाइनली वाया दैट इंफॉर्मेशन आई रीच्ड इग्निशिया एंड शी डिड वेल. सो जब नाइट्रमूर आपसे नजरें चुरा के इधर उधर देखता है ताकि आप उनकी आंखों में झांक ना सको, इग्निशिया नीचे देखता है, क्योंकि उसे ही लगता है कि नहीं यार मैं जो कर रही हूँ गलत कर रही हूँ, डॉक्टर को बताना चाहिए बट नहीं बता सकते क्योंकि मेरे मॉरल्स मुझे अलाउ नहीं कर रहे हैं. Okay, so that was it, guys. Thank you for listening and being patient and listening to the whole video. If you have liked this video, please like, comment, share, subscribe. वो घंटी वाला बटन भी दबा देना. So till next time, टाटा, bye bye. Okay, shit.